Hello everyone. So in this video we'll be learning about natural language processing. So this is fifth unit of your syllabus. So in natural language processing में हम देखेंगे what is natural language processing, then is what are the different applications of NLP, then chatbots क्या होते हैं, then what is the difference between human language versus computer language, text normalization क्या होता है, and finally the bag of words. So let us start. So natural language processing, again what it is a domain of AI. तीन domain है, data science, then is we have computer vision, and this is your third domain, that is natural language processing. So natural language processing is one of the domain of AI. Now it takes data in the form of textual or speech data. So जो normally humans use करते हैं day to day life में या daily life में हम बोल सकते हैं, so that वो input ये लेता है. Now it converts human language to computer language, that is numeric data, and some of the applications of NLP is automatic summarization, sentiment analysis, text classification और virtual assistants. So एक बार देख लेते हैं कि what is automatic summarization. So now automatic summarization का मतलब हो गया कि summarizing the meaning of documents and information, but also to understand the emotional meanings within the information. मतलब कि जो हमने इसको टेक्स्ट दिया है वो उसको पूरा समराइज कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को, लेकिन साथ साथ में समराइज करने के साथ साथ में उसके अंदर जो इमोशनल मीनिंग्स हैं उनको भी वो समझ सकता है. Now automatic summarization is especially relevant when used to provide an overview of a news item. कहाँ पे इस्तेमाल होता है normally automatic summarization? So it is used to provide an overview of a news item or blog post while avoiding redundancy. Redundancy मतलब duplication नहीं होनी चाहिए from multiple sources and maximizing the diversity of content obtained. So what it can do is अलग अलग न्यूज़ आइटम्स या ब्लॉग पोस्ट में से ये एक पर्टिकुलर चीज़ को समराइज कर देता है विदाउट डूइंग दी रिडंडेंसी. दैट मीन्स डुप्लीकेशन नहीं होगा उस मैटर का. अगर 5 जगह पे वो सेम न्यूज़ आ रही है तो वो एक बार उसको इकट्ठा उठा के और एक ही बार उसको दिखाएगा. सो दैट इज द टास्क ऑफ योर ऑटोमेटिक समराइजेशन. अब देखते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है. नाउ सेंटिमेंट एनालिसिस अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ NLP. So the goal of sentiment analysis is to identify sentiment among several posts or even in the same post where emotion is not always explicitly expressed. अब इमोशन एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस का मतलब है डायरेक्टली इमोशंस तो नहीं समझ में आ रहे हैं टेक्स्ट के बेसिस में, तो वो उसमें से सेंटिमेंट्स को फेच कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है. So companies use natural language processing applications such as sentiment analysis to identify opinions and sentiment online to help them understand what customers think about their products and services. तो वो ये जान सकते हैं कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में क्या समझते हैं या क्या बोलना चाहते हैं. Now next application of NLP is your text classification. So text classification एक बहुत ही important application है NLP का. So it basically what it does is वो already जो assigned या फिर हम बोल सकते हैं predefined categories हैं उसको वो categorize कर देता है आपके text को. So text classification makes it possible to assign predefined category to a document and organize it to help you find the information you need or simply some activity. For example, if I write a particular text or give it to a chatbot, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें मुझे कोडिंग प्रोवाइड करनी है या मुझे इसमें से स्पोर्ट्स का मटेरियल देना है. सो वो ऑटोमेटिकली उसमें से आइडेंटिफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट. ये किससे रिलेटेड मैटर है, वो कोडिंग से रिलेटेड मैटर है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैटर है या टेक्नोलॉजी से या फैशन से, वो आइडेंटिफाई करके और फिर उसी से रेलिवेंट आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है. So for example, an application of text categorization is spam filtering in email. तो spam filtering in email हमारा हो गया, तो कैटेगरी बन गई ना कि ये spam है. Similarly आजकल हमारे जैसे for example प्राइमरी इनबॉक्स है, then we have the सोशल मीडिया का अलग से हमारा है, then मार्केटिंग का अलग है. तो वो ऑटोमेटिकली क्लासीफाई कर सकता है टेक्स्ट को कि ये मेल किस तरीके का मेल है. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ NLP is your virtual assistant. So now Google Assistant, Cortana, Siri, Alexa, इनके अंदर भी NLP यूज होता है. So there are 4 applications starting from text classification, virtual assistant, sentiment analysis, automatic summarization. तो ये 4 हमारे applications NLP के हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो चारों applications आपको याद होनी चाहिए. Now next आते हैं what are chatbots. तो chatbot हमारे होते क्या हैं. So chatbot एक ऐसा प्रोग्राम है
जो डिजाइन किया गया है कि इस तरीके से कि ऐसा लगे कि ह्यूमन कोई कन्वर्स कर रहा है, लेकिन वो मशीन कन्वर्स कर रही होती है, ठीक है। वो वॉइस में भी आपसे बात कर सकते हैं, मतलब कि स्पीच से भी डायरेक्ट 1 to 1, या फिर आपको टेक्स्ट दे के भी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैट बॉट्स, स्क्रिप्ट बॉट्स एंड स्मार्ट बॉट्स। सो लेट अस सी दीज 2 टाइप्स ऑफ द चैट बॉट्स, दैट इज स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं स्क्रिप्ट बॉट की, सो बॉट्स दैट फॉलो प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट। प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट का मतलब हो गया पहले से कुछ चीज लिखी हुई है या फिर रूल लिखे हुए हैं, वो उसी रूल्स को या स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, उसके अलावा कोई नई चीज नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन स्मार्ट बोट में जो है वो एआई पावर्ड होते हैं। स्क्रिप्ट बोट इज नॉट एआई पावर्ड, वेयर स्मार्ट बोट्स आर एआई पावर्ड बोट्स दैट कैन लर्न, अडैप्ट एंड रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली। जब फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो जो स्क्रिप्ट बोट होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं सिर्फ फिक्स कमांड्स को, और उसके अलावा उनको कोई नया कमांड मिलेगा तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। लेकिन स्मार्ट बोट्स जो होते हैं वो मशीन लर्निंग को यूज करते हैं या फिर एनएलपी को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड डायनामिकली। तो आपसे वो डायरेक्ट 1 to 1 बात कर सकते हैं थ्रू दैट मशीन लर्निंग। देन इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्क्रिप्ट बोट्स हैं वो लिमिटेड हैं टू प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज एंड वर्कफ्लोज, whereas smart bots can adapt based on user input, learning and context. Then is your learning ability. There is no learning capability in the script bot, क्योंकि वो फिक्स्ड रूल पे काम करते हैं, स्टैटिक लॉजिक पे काम करते हैं, सो देयर इज नो लर्निंग इन स्क्रिप्ट बोट्स। लेकिन स्मार्ट बोट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं, पास्ट इंटरेक्शन जो हमारी उनसे हुई होगी उसके बेसिस पे वो लर्न करते रहते हैं। ओके, अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ पे स्क्रिप्ट बोट इस्तेमाल होते हैं। तो स्क्रिप्ट बोट्स आर यूज्ड इन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, बेसिक कस्टमर सर्विस, शेड्यूल्ड टास्क। लेकिन स्मार्ट बोट्स, एडवांस्ड चैट बोट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, एलेक्सा, सेल्फ लर्निंग, कस्टमर सपोर्ट, तो यहां पे स्मार्ट बोट्स यूज होते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहली जो चीज है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग। नाउ जो सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स वर्ड है, दैट सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर, ठीक है। सिंटेक्स इज व्हाट? इट इज बेसिकली द ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ एनीथिंग इज योर सिंटेक्स। तो ग्रामर जो है वो सिंटेक्स है। लेकिन अगर किसी चीज की मीनिंग की बात करते हैं, जो मीनिंग है दैट इज नोन एज योर सिमेंटिक्स। ओके, नाउ एक एनालॉगी है। एनालॉगी मतलब आपका एक प्रॉब्लम है विद ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और वो ये है कि देयर कैन बी डिफरेंट सिंटेक्स बट सेम सिमेंटिक्स। डिफरेंट सिंटेक्स का मतलब है उनको लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन उनका मीनिंग सेम है, ठीक है। नाउ ग्रामर कैन बी डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से 2 + 3, सो दिस इज अ डिफरेंट सिंटेक्स, एंड इफ यू से 3 + 2, दिस इज अ डिफरेंट सिंटेक्स। दोनों का सिंटेक्स अलग अलग है लेकिन दोनों का सिमेंटिक्स सेम है, मीनिंग सेम है। ओके, एंड नाउ हाउ डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? वो नहीं समझ सकता इन सब चीजों को, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग देयर इज अ एनालॉजी विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ देयर कैन बी सेम सिंटेक्स बट डिफरेंट सिमेंटिक्स। सेम सिंटेक्स का मतलब हो गया, you can see here it is written 3/2, it is written 3/2, so there is no deviation in the syntax, it is written as it is. लेकिन जब हम Python 2.7 की बात करते हैं तो it means 3/2 means it is equal to 1, whereas जब हम Python 3 नए वर्जन की बात करते हैं तो it means 1.5. So now you can see itself, there can be same syntax but different semantics, there can be different syntax but same semantics. So these are the analogy with the programming language. Now जब हम ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो ह्यूमन लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब बहुत कॉम्प्लेक्स तो होता है लेकिन हमारे इवन कंप्यूटर लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि देयर कैन बी डिफरेंट सिंटेक्स लेकिन मीनिंग सेम है, देयर कैन बी सेम सिंटेक्स पर उनका मतलब अलग अलग है। ओके, सो नाउ एक और चीज देख लेते हैं। If you see these 3 sentences, his face turned red after he found out that he had taken the word bag. Okay, this is one of the sentence. The second sentence is a red car zoomed past his nose. And the third sentence is his face turns red after consuming the medicine. Now you can see there are 3 sentences and all these 3 sentences the word red is being used. So तीनों sentences में red word use हुआ है. Now his face turned red. क्या उसका मुंह लाल हो गया, पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया पूरे मुंह का? नो,
It is basically something known as if you read the entire sentence, तो why we are using this word turned red after he found that he had taken the wrong bag. So वो उसको जो है शॉक एक लग गया कि मैं किसी और का बैग उठा लाया, मेरा बैग कोई और ले गया. तो वो उसके बेसिस पे, हम उस रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे इस रेड वर्ड को यूज कर रहे हैं. And you can see the second sentence, the red car zoomed past his nose. Okay, now the red car zoomed past his nose. अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल उसके नाक के बगल में से निकल के गई ये कार? नहीं, वो नहीं है. It means कि the car was so fast कि he was unable to see that. So you can see there are different, the same words are being used in 3 different sentences, but their meaning are different. अब अगर खाली उसकी मीनिंग की बात कर लें, यहाँ पे रेड, तो हम अगर बोले ये रेड कलर हो गया, ये भी रेड कलर हो गया, ये भी रेड कलर हो गया. इफ इट सेज हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन, तो व्हाट वी आर रेफरिंग टू एलर्जी. उसको एलर्जी होगी उस मेडिसिन से, दैट्स व्हाई हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन. So now this is also a big problem for the computers to understand all these sentences. So already जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, और वो कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, ये एक बिग चैलेंज बनता है, ठीक है, मशीन्स के लिए. सो देयर कैन ऑल्सो बी चांसेस दैट वी हैव द परफेक्ट सिंटेक्स, मतलब कोई ग्रामर मिस्टेक कुछ भी नहीं है. There can be a perfect syntax, but there can be a no meaning to that sentence. Okay. Now, for example, chickens feed extravagantly while the moon drinks tea. So the syntax is okay, but it doesn't make any meaning. कोई sense नहीं बना रहा है. So now, these are some of the challenges we might have to face if we try to teach computers how to understand and interact in human language. So ये computer के लिए एक बड़ा challenge है. So how does natural language processing do this magic? Now, this can be handled by this data processing technique. Now, what is this data processing technique? So since we all know that language of computer is numerical, the very first step that comes to our mind is to convert our language to numbers. तो पहले सोच तो यही आती है कि हम अपनी लैंग्वेज को ही जो है किस में बदल दें, नंबर्स में कन्वर्ट कर दें. Now this conversion takes a few steps to happen, and the first step to it is your text normalization. Now, since human language are complex, we need to first of all simplify them in order to make sure that the understanding becomes possible. अब हमारी ह्यूमन लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हम लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन मशीन्स को समझाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज योर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. ओके. So text normalization helps in cleaning up the textual data in such a way that it comes down to a level where its complexity is lower than the actual data. So what is text normalization? It's basically, you can write it in your own words, to reduce the complexity of the textual data, to reduce the complexity, और या speech वाला data को भी वो reduce कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है. Now text normalization की जब हम बात करते हैं, तो in text normalization we undergo several steps to normalize the text to a lower level. So अब textual data जो हम multiple document में से fetch करेंगे, उस सब को हम लोग बोलते हैं corpus. So if we have a particular textual data from multiple documents, what we call that as, we will call that as your corpus. तो उसको हम लोग बोलेंगे corpus. So that is known as your corpus. Fine. So the textual data from multiple documents altogether is known as your corpus, and we'll be working with that corpus. Okay. So let us see how we'll be working with that. So text normalization में the first part or the first step is sentence segmentation. Now sentence segmentation में क्या करते हैं हम लोग? The whole corpus is divided into sentences. जो पूरा का पूरा हमारा corpus है, this is your corpus, ये पूरा corpus है, ये multiple document में से हम लोगों ने fetch किया है. अब इसको हम इस corpus को break down कर देते हैं into sentences. अब how do you convert into sentences or how do you divide it into sentences? It's very simple. जहाँ पे आपका full stop आ जाए, so you can say in this particular corpus, if you see the first full stop, this is my first full stop, okay, and the second full stop is here, so that means there are 2 sentences. So we break down this into 2 sentences. एक यहाँ पे break down कर दिया और दूसरा for से start किया. So this is how it has converted into 2 sentences. So ये 2 sentence में break down हो गया. So this is your sentence segmentation. So what is sentence segmentation? Breaking down of the corpus into sentences is known as your
sentence segmentation. Okay, now अब second step पे आते हैं. First step is complete and the second step is your tokenization. Now what is tokenization? Tokenization is after segmenting the sentence, each sentence is then further divided into tokens. Now लेकिन tokens होते क्या हैं? So token is a term used for any word or number or special character. So what is token? Token is basically a word, a number or a special character that occurs in a sentence. So if you see this particular first sentence, ठीक है, वहां पे दो सेंटेंस में कन्वर्ट किया था, अभी हम फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं. If you see this first sentence, so how many tokens are there? You can see in is one of the token, CBT is another token, comma is the another token. ठीक है, ध्यान रखना, comma is also a token. Then V is another token, learn is another token, to, decipher, the, lies. So you can understand we have broken down into these tokens. So you can see in, CBT, comma, V, learn, to, and even the full stop is also a token, a dash is also a token. ठीक है, so all the words, the numbers, special characters, वो एक एक टोकन है. कई बार एग्जाम में ये भी आता है, आपको सेंटेंस दिया होगा एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी टोकन्स आर देयर. तो वो टोकन्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. यू जस्ट हैव टू ब्रेक डाउन इनटू टोकन्स एंड दैट इज योर टोकनाइजेशन. So tokenization is what? Breaking down of your sentence into tokens. And what are tokens? Token is the word, number or special characters occurring in the sentence. So under tokenization, every word, number and special character is considered separately and each of them is now a separate token. तो ये हर एक अलग अलग टोकन आप हमें क्रिएट हो गया हमारे पास. Now अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे. Now जब हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं तो स्टेप नंबर 3 में we remove stop words. So what we do is we remove stop words. Now, what are stop words? So, stop words are the words which occur very frequently in the corpus but do not add any value to it. So, these are some of the talk words, जैसे stop words, जैसे कि a हो गया, and, are, as, for, ये सब tokens हैं. To, is, into, in, if, on, or, such, the, there, to. So, there can be many more stop words. तो ये सारे stop words हैं. तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अपने sentence जो हमारा tokens बने उसमें से remove कर देंगे. We'll also remove special characters like for example full stop, comma, exclamation. So वो ये सब भी हम remove कर देंगे और numbers भी remove करेंगे. We also remove the numbers as well. So we remove all these things, stop words, special characters and numbers. So this is step number 3. Okay. इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा नोट है, इसमें समझ लेना अच्छी तरीके से. Now, these words occur the most in any given corpus but talk very little or nothing about the context or the meaning of it. Hence, to make it easier for the computer to focus on meaningful terms, these words are removed. तो मतलब हम बात कर रहे हैं stop words की. क्यों remove करते हैं stop words? कि वो बहुत frequently occur होते हैं लेकिन वो context से उनका meaning बहुत कम होता है, तो इसीलिए उनको हम remove करते हैं. Now, along with these words, a lot of times, ये important है, a lot of time our corpus might have a special character and or number. कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे कॉर्पस में कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर हो सकता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉर्पस दैट वी आर वर्किंग ऑन वेदर वी शुड कीप देम इन इट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ईमेल, अगर आप किसी ईमेल पे काम कर रहे हो, अब ईमेल में क्या आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ईमेल में @ साइन आता है, बट ये @ साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है डोमेन को. ठीक है, उसमें अंडरस्कोर आता है, कई बार फुल स्टॉप आता है, तो वो हम रिमूव नहीं कर सकते. वो रिमूव कर दिया तो ईमेल का पूरा एड्रेस ही गलत हो जाएगा. सो वी कैन नॉट रिमूव ऑल दीज वर्ड्स. तो जो हम स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कॉर्पस है. अगर वो कोई ईमेल आईडी है, कोई वेबसाइट का नाम है, तो हम उन स्पेशल कैरेक्टर या नंबर को रिमूव नहीं करेंगे. लेकिन इन सम अदर टेक्सचुअल डाटा, इफ दीज कैरेक्टर्स डू नॉट मेक सेंस, लेकिन अगर वो कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, देन वी कैन रिमूव देम अलॉन्ग विद द स्टॉप वर्ड्स. तो वो स्टॉप वर्ड्स के साथ हम उसको रिमूव करेंगे. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि व्हेन वी आर रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, if it is making sense, the number or the special character is making sense, we will not remove that. ठीक है, ये अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना. Okay, now let us move to the next step, and that step number 4 is converting the text to a common case. Common case का मतलब हो गया कि अगर आपके पास जो टेक्स्ट है वो अलग अलग केसेस में है. अलग अलग केसेस का मतलब हो गया कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है.
So in this particular step, we convert that into one single case, and that is your lower case. Okay. So for example, in computer language, if you see this thing, this is hello, you can say, okay, this is hello, this is hello, this is also hello, this is also hello, this is also hello, this is also hello. But for computer, these are different words. The reason is computer only understand the language of numbers. जैसे हम बात करते हैं तो ये पूरा कैपिटल में है, तो जब उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा तो इट यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर फॉर दिस. बट जब इसको कन्वर्ट करेगा यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर फॉर दिस, बिकॉज बीच में कोई छोटा है, कोई बड़ा है लेटर है, तो वो उसका नंबर अलग आएगा. So that is why in text normalization, to simplify the text, we convert the entire token. जो हमारे पास टोकन बचे हुए थे उसको हम लोग एक प्रिफरेबली लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं सबको, ताकि it becomes easier for the computer to understand. So step number 4 is converting text to a common case, and that common case is preferably lower case, या हम बोल सकते हैं small letters. कंप्यूटर क्योंकि केस सेंसिटिव होता है. Now अब आते हैं step number 5 पे, and step number 5 is your stemming. Now what is stemming? So stemming is nothing but removing the affixes. Now what are affixes? Affixes are the words which are added to a particular word to the end. For example, if you see healed, so this ed is your affix, ing is your affix, healer में er is your affix, studies में es is your affix in studies में, okay. And then after that studying में ing is your affix. So these are the affixes you can see. So जो word के last में हमारे लगे होते हैं word, that is basically affix. So you simply remove that. So अगर हम stemming कर रहे होते हैं, we simply remove that. तो healed का ed remove कर देंगे, you get el. healing का ing remove कर देंगे, you get again heal. healer का er remove कर दोगे, you get only heal. studies का es remove कर देंगे, you get studi only. studying का ing remove कर देगा, you get only study. So these are your stemmed words. I hope you have understood what is stemming. So you actually remove the affix, है ना, and convert that into their root words. So the remaining word are reduced to their root words. तो उसको root जो ये आ गया, इनको हम लोग बोलते हैं root words हमारे हैं ये. Fine. So stemming does not take into account if the stemmed word is meaningful or not. ये वाला अगर आप देखते हो तो ये क्या मीनिंगफुल वर्ड है, studi, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना. बाकी तो मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, लेकिन ये जो studi है ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना. तो जो स्टेमिंग होता है वो ये ध्यान नहीं देता है कि जो हमारा कन्वर्जन के बाद जो वर्ड बना वो मीनिंगफुल है या नहीं है. इट जस्ट रिमूव्स द एफेक्सेस, हेंस इट इज फास्टर. इसीलिए ये फास्ट होता है. अब आते हैं नेक्स्ट. इसी में स्टेमिंग के साथ में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लेमेटाइजेशन. नाउ लेमेटाइजेशन इज व्हाट, सेम प्रोसेस है, ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है. ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया या तो स्टेमिंग होगी या लेमेटाइजेशन होगा, दोनों नहीं होगा. ईदर द स्टेमिंग विल बी देयर और लेमेटाइजेशन विल बी डन. फाइन. सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस टू ईच अदर एज द रोल ऑफ द बोथ द प्रोसेस सेम, दैट इज रिमूवल ऑफ एफिक्सेस. सो इट जस्ट रिमूव्स द एफिक्सेस. But the difference between both of them is that in lematization, the word we get after affix removal, also known as lemma, तो जो वर्ड हमारे पास आते हैं उसको हम लोग लेमा भी बोलते हैं, ठीक है, इज अ मीनिंगफुल वन. तो वो ये ध्यान देता है कि जो वर्ड हमारा कन्वर्ट होके आया वो मीनिंगफुल होना चाहिए. जैसे कि स्टडीज में द एफिक्स वाज योर ईएस. हमने क्या रिमूव किया? वी जस्ट रिमूव्ड ईएस. सो वी ओनली रिमूव्ड ईएस. सो इफ वी रिमूव्ड ईएस देन व्हाट हैपेंस? द वर्ड दैट वी गेट इज studi. तो जो वर्ड हमारा बनेगा दैट विल बी studi. लेकिन यहां पे उसने उसको studi की जगह उसने इसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, studi का हटा के y लगा दिया. दिस इज कन्वर्जन ऑफ अ स्टेम्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल वर्ड, एंड दैट इज बेसिकली योर लेमेटाइजेशन. क्योंकि ये मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करता है एफिक्स रिमूव करने के बाद, सो इट टेक्स टाइम. वो फास्ट होता है स्टेमिंग, वेयर एज लेमेटाइजेशन इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. Okay, so lematization makes sure that the lemma is a word with meaning. तो जो भी आपका lemma होगा वो meaningful word होगा. stem जो होता है, if you see the stem word, वो meaningful नहीं होता, लेकिन जो lemma word होता है वो meaningful होता है. Hence it takes a longer time to execute than stemming. As you can see in the same example, the output of studies after affix removal has become study instead of studi. I hope you have understood what is lematization. Okay, so these are the 5 steps of text normalization, starting from sentence segmentation, ठीक है, then tokenization, then removal of stop words,
special characters and numbers. Then fourth step was basically your conversion of the tokens to same case, preferably lower, and finally stemming and lemmatization. अभी stemming और lemmatization की हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं. इफ यू सी केयरिंग वर्ड, ठीक है, केयरिंग वर्ड हमारे पास है. अब इसमें जो एफिक्स है दैट इज योर आईएनजी, ठीक है, द एफिक्स इज आईएनजी. अगर हम लेमेटाइजेशन करेंगे तो ये बनेगा CAR बचेगा, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है तो ये बन गया केयर, ठीक है. लेकिन स्टेमिंग क्या करेगा? स्टेमिंग जो है वो सिंपल आईएनजी रिमूव कर देगा और जो वर्ड बना वो मीनिंगफुल हो या ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है. तो देख रहे हो, केयरिंग का कार बना दिया, पूरा मतलब ही बदल गया, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लेमेटाइजेशन एंड व्हाट इज स्टेमिंग. नाउ अब आते हैं इसके लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे, एंड दैट इज बेसिकली योर बैग ऑफ वर्ड्स. नाउ व्हाट इज बैग ऑफ वर्ड्स फर्स्ट? सो नाउ बैग ऑफ वर्ड्स इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल which helps in extracting features out of the text. तो जो हम लोगों ने उसको टेक्स्ट दिया है उसमें से वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, which can be helpful in machine learning algorithms. So in bag of words we get the occurrence of each word. What we get in bag of words? We get the occurrence of each word. So ये आप इसकी definition को note down कर लो. So what bag of word gives? It gives the occurrence of each word. हर वर्ड कितनी बार ओकर हो रहा है, एंड कंस्ट्रक्ट द वोकैबुलरी फॉर द कॉर्पस. नाउ दिस इमेज गिव्स अस अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउ बैग ऑफ वर्ड्स वर्क. एज यू कैन सी एट द राइट, इट shows us a list of words appearing in the corpus and the numbers corresponding to it shows how many times the word has occurred in the text body. Now thus we can say that the bag of word gives us two things. दो चीजें हमें देता है bag of word. First, a vocabulary of words for the corpus. ये पूरा corpus है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था what is corpus. The textual data from multiple documents is known as your corpus. हमारा जो भी जितना भी टेक्सचुअल डाटा है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में से, वो सारा का सारा हमारा कॉर्पस है. तो ये पूरा कॉर्पस है हमारे लिए, ठीक है. तो इस कॉर्पस में से वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स हमें दे देता है, ठीक है. और फाइनली द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वर्ड्स. फ्रीक्वेंसी मतलब हर वर्ड कितनी बार ओकर हो रहा है, वही उसकी डेफिनेशन है, ऑकरेंस ऑफ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट. अब आते हैं कि हम बैग ऑफ वर्ड्स करेंगे कैसे. सो नाउ बैग ऑफ वर्ड्स में एज इट सेज बैग हमारा क्या है, एक वर्ड हम ध्यान से देखो. बैग ऑफ वर्ड सिंबलाइजेस दैट अ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस और टोकन्स डज नॉट मैटर इन दिस केस, एज ऑल वी नीड आर द यूनिक वर्ड एंड देयर फ्रीक्वेंसी इन इट. हम सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल कि क्या सेंटेंस है, क्या उसका मीनिंग है, कुछ नहीं. सिंपल इसका मतलब है कि हर वर्ड कितनी बार ओकर हो रहा है, लेकिन उसको भी करने के लिए देयर आर 4 स्टेप्स. So here is a step-by-step approach to implement bag of word algorithm, and the first is your text normalization. So first हमारा जो step आता है that is your text normalization. Now collect data and pre-process it. Text normalization के again 5 steps थे, वही हमें करने हैं. लेकिन bag of words के अंदर text normalization जब हम कर रहे होते हैं तो text normalization में आपको ये ध्यान रखना है, will not do the stemming and lemmatization. हम ना तो stemming करेंगे ना lemmatization करेंगे, ना ही उसमें से हम लोग स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे अगर टेक्सचुअल डाटा कम है. नॉर्मली आपके जो बोर्ड के पेपर होंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं बहुत कम डाटा होता है, तो उसमें से हम स्टॉप वर्ड्स रिमूव नहीं करेंगे. येस वी विल रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स अगर उसमें है. स्पेशल कैरेक्टर हम रिमूव कर देंगे, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, उनको हम रिमूव कर देंगे. अदरवाइज स्टेमिंग लेमेटाइजेशन नहीं करना और आपको स्टॉप वर्ड्स रिमूव नहीं करने बैग ऑफ वर्ड के अंदर. ये नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है. अभी एक एग्जांपल देखेंगे बैग ऑफ वर्ड्स का, फिर आपको समझ में आ जाएगा. और प्रीवियस 2 इयर्स के पेपर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है अपने इसी चैनल के अंदर. तो अगर आप प्रीवियस 2 इयर्स के पेपर देखोगे 2023 के और 2024 के, तो उसमें आपका जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो आपका बैग ऑफ वर्ड से रिलेटेड है. तो वो आप अच्छी तरीके से समझ लो, वो आपको आ गया तो आपके 4 मार्क्स तो पक्के हो ही गए बैग ऑफ वर्ड से रिलेटेड. अब आते हैं सेकेंड स्टेप इज योर क्रिएटिंग डिक्शनरी. Now create dictionary, make a list of all the unique word occurring in the corpus. Finally, create document vectors for each document in the corpus. Find out how many times the word from the unique list of word has occurred. And last step is create document vector for all the document. तो ये चारों स्टेप आपको लिखने हैं जब आप बैग ऑफ वर्ड कर रहे हो. स्टेप लिखने के भी मार्क होते हैं, ओके. तो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए चारों स्टेप्स. अब आते हैं एग्जाम्पल पे बैग ऑफ वर्ड के. नाउ
Let us say, for example, we have these three documents. Document 1, you can see this document 1, document 2 and document 3. ये तीन डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं. डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी. अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड. अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट एंड अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट. ठीक है, वी हैव दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स. दैट मीन सेंटेंस सेगमेंटेशन ऑलरेडी किया हुआ है इन्होंने. सो हियर आर थ्री डॉक्यूमेंट्स हैविंग वन सेंटेंस ईच. आफ्टर नॉर्मलाइजेशन द टेक्स्ट बिकम्स. अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टेप नंबर 1 इज टेक्स्ट कलेक्ट करना है डाटा और प्री प्रोसेस करना है, मतलब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आप बोल सकते हो. तो डॉक्यूमेंट 1 क्या बना, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, ये भी स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, ये भी स्मॉल में, और स्ट्रेस तो एज इट इज कन्वर्ट हो गया. स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन नहीं करनी हमें, स्टॉप वर्ड्स रिमूव नहीं करने हमें. ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया. डॉक्यूमेंट 2 देखो आप ध्यान से. So this Aman converted into small letters, this went into again small letters, 2 into ये and then A as it is and therapist as it is, and then comma separated है क्योंकि ये अलग अलग tokens के फॉर्म में हम बोल रहे हैं कि ये वर्ड हमारे पास आए. Then document 3 की अगर हम बात करते हैं तो document 3 के अंदर we get same Anil. ठीक है, I'll clear this. So we get this Anil as one of the token, then went as another token, to download a health chatbot. ये अलग अलग tokens हमारे पास आ गए. So प्लीज नोट डाउन करना एक चीज, नोट दैट नो टोकन्स हैव बीन रिमूव्ड इन द स्टॉप वर्ड रिमूवल स्टेप. It is because we have very little data, and since the frequency of all the words is almost the same, no word can be said to have lesser value than the other. तो अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट में बहुत कम टेक्स्ट है तो इसीलिए हम उनको रिमूव नहीं करेंगे. सो लेट अस मूव टू द स्टेप नंबर 2 ऑफ द बैग ऑफ वर्ड, एंड दैट इज क्रिएटिंग डिक्शनरी. जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो इसमें से देखेंगे कि यूनिक वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं. तो यूनिक वर्ड हमारे पास जो आए, दैट इज बेसिकली इफ आई जस्ट कम बैक हियर. ठीक है, इसमें वापस आते हैं एंड लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट यूनिक वर्ड्स हियर. सो अमन इज वन ऑफ द यूनिक वर्ड, एंड इज अनदर यूनिक वर्ड, देन इज अनिल इज अनदर यूनिक वर्ड, आर इज अनदर यूनिक वर्ड, स्ट्रेस्ड इज अनदर यूनिक वर्ड. अमन ऑलरेडी मैं अंडरलाइन कर चुका हूं, यूनिक वर्ड मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए. Then went is another unique word, 2 is another unique word, A is another unique word, therapist is another unique word. Anil already underline कर चुका हूं मैं, went भी कर चुका हूं, went नहीं हुआ sorry, went, then 2 already हो चुका है, ये देखो ये 2 हो चुका है, went to a therapist. तो 2 हम दोबारा नहीं करेंगे, डाउनलोड करेंगे, already हो चुका है, you can say this, so I'll not underline this. Then health and then chatbot. So these are the unique words you can see. जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये अलग अलग वर्ड्स हैं, ये डिक्शनरी बनाएंगे. तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना, उस डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड्स हमारे आ गए. सो स्टेप नंबर 2 में वी गेट ऑल दीज वर्ड्स. सो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई. अब आते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर. नाउ स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारा, इफ यू सी डॉक्यूमेंट 1, तो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर पहले आप क्या करोगे, जो आपने डिक्शनरी बनाई स्टेप नंबर 2 में, उस डिक्शनरी को आप इस फॉर्मेट में लिख लोगे, टेबुलर फॉर्मेट में लिख लोगे, ऊपर हेडिंग के फॉर्मेट में. नाउ आपने ये हेडिंग के फॉर्मेट में टेबल के ऊपर लिख लिया, ये हेडिंग बन गया. अब डॉक्यूमेंट 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉक्यूमेंट 1 में हमारे पास जो बना था स्टेप नंबर 1 में, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड. तो इनके ऑकरेंस को यहां पे नोट डाउन कर देंगे कि अमन एक बार आ रहा है, एंड एक बार, अनिल एक बार, आर एक बार, स्ट्रेस्ड एक बार. बाकी डिक्शनरी के जो वर्ड्स थे, वेंट टू अ थेरेपिस्ट, डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, ये 000 टाइम्स आ रहे हैं. ओके, नाउ अब डॉक्यूमेंट नंबर 2 की बात करते हैं. तो अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, तो अमन एक बार आ गया, वेंट एक बार आ गया, टू एक बार आ गया, एक बार आ गया, थेरेपिस्ट एक बार आ गया, और जो बाकी वर्ड्स हैं वो 000 टाइम्स आ गए. सेम डॉक्यूमेंट 3 की बात करते हैं. तो अनिल 1 टाइम, वेंट अनदर 1 टाइम, 2 एक बार, डाउनलोड एक बार, ए एक बार, और हेल्थ एक बार, और चैटबॉट एक बार. बाकी सब में 0. अमन एक बार भी नहीं है इसमें डॉक्यूमेंट 3 में तो 0, एंड भी नहीं है तो 0, आर भी नहीं है तो 0, एंड देन थेरेपिस्ट नहीं है तो 0. And this is your step number 3 complete. That is known as your creating document vector for individual document. तो हर एक 3 डॉक्यूमेंट है तो 3 बार आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा. ओके, एंड नाउ फाइनल स्टेप, एंड दैट इज योर स्टेप नंबर 4. नाउ स्टेप नंबर 4 इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट. तो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना है. अब सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाना है तो आप टॉप में तो एज इट इज जो आपने डिक्शनरी बनाई थी स्टेप नंबर 2 में, उसके वर्ड्स आप लिख लोगे. देन आफ्टर दैट डॉक 1
अमन कितनी बार ऑकर हुआ है? 1 बार, ठीक है, मतलब समराइज करना है आपको, तो doc1 doc2 doc3 एक ही टेबल में कर दोगे, देन यू एड इट इन द एंड, तो आपने एंड में टोटल कर देना इनको, एंड दिस इज योर बैग ऑफ वर्ड्स. सो व्हाट डू यू गेट? अमन 2 and 1, Anil 2, R 1, stressed 1, went 2, 2, 2, A 2, therapist 1, download 1, health 1, chatbot 1. So this is known as the frequency or the occurrence of words in the document. So this is your bag of words. I hope you have understood all the 4 steps. आप एक बार प्रीवियस 2 years के पेपर जरूर देख लेना, उससे बैग ऑफ वर्ड अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा. अब आते हैं TF-IDF. Now what is TF-IDF? TF-IDF का फुल फॉर्म है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, या डैश करके भी आप बोल सकते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. नाउ इस TF-IDF के अंदर हमारा क्या होता है कि आपका जिस वर्ड की ऑकरेंस जितनी कम होगी, जिस वर्ड की ऑकरेंस जितनी कम होगी, इफ यू सी द ग्राफ हियर, ग्राफ को समझना जरूरी है. ऑकरेंस मान लो किसी वर्ड की एक बार आ रही है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. तो जिस वर्ड की ऑकरेंस जितनी कम है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू कम है. आप ये देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, उनकी वैल्यू कम है. यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू है उसकी. अगर उसकी फ्रीक्वेंट वर्ड है उसकी वैल्यू कम होगी, और जो स्टॉप वर्ड है तो उनकी तो बहुत कम होती है वैल्यू, ठीक है, इसीलिए उनको ऑलरेडी रिमूव कर देते हैं. बट फिलहाल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखेंगे. Okay, so I hope you have understood this chapter as well, and this is the end of natural language processing. I hope you have understood. Thank you.